Good morning to all of you. Myself Vijay Kumar. Welcome you once again in Biology at your fingertips with Vijay. My dear friends, we have discussed photosynthesis and the light reaction of photosynthesis. In light reaction, we came to know that there are two products of the light reaction. One is ATP and another one is NADPH. One is ATP and another one is NADPH. Now, I want to ask you one question. And there is a question in our mind that where this ATP and NADPH, which are the energy source, they are used. Where they are used. Where they both are used. So the answer for your question is they are used, they are produced in the grana during light reaction and they are used in stroma chloroplast during dark reaction. The topic of our discussion today. Dark reaction, which is also called biosynthetic phase. It is also called biosynthetic phase. Why biosynthetic phase? Because in this phase, by using the ATP and NADPH as energy source, we convert the carbon dioxide into sugars, or I can say carbohydrates or glucose, कुछ भी कह दीजिए आप, or food, for which the process of photosynthesis is known. जाना जाता है फूड फॉर्मेशन के लिए फोटोसिंथेसिस. वो फूड, वो ग्लूकोज, वो शुगर्स डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज के दौरान लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करके बनाया जाता है. नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट दिस पर्टिकुलर बायोसिंथेटिक फेज, जो बायोसिंथेटिक फेज है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द indirectly dependent on the light reaction. It is indirectly dependent on the light reaction because it is dependent on the product of light reaction, ATP and NADPH. So now, when it is dependent on the light reaction, it means it is dependent on the light. क्योंकि लाइट नहीं होगा तो ATP और NADPH नहीं बनेगा. इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन कहना एक मिसलीडिंग बात है, एक मिसनोमर है. It is a misleading statement, misleading term. So the proper term is biosynthetic phase. Is it clear? Now the question arises in our mind that how the CO2 it got converted into food, glucose. CO2 को कैसे convert किया जाता है glucose में? तो very simple way. Scientists they start working for this after the World War II, and it was Melvin Calvin. It was Melvin Calvin and his co-workers Wesson and Wilson, by using radioactive carbon isotope 14 C14 and the techniques of chromatography and autoradiography, chromatography और autoradiography के टेक्निक और कार्बन 14 रेडियोएक्टिव आइसोटोप का यूज करके they have proposed this pathway, C3 pathway. Okay. The scientists of that time, they came to a conclusion that in some plants this is the sole pathway. ये अकेला ही pathway ऑपरेट करता है और ग्लूकोज बनाता है. लेकिन कुछ और प्लांट्स हैं जिनमें C3 के साथ साथ 85% प्लांट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, उनमें तो अकेला ही C3 साइकिल करता है फूड प्रोडक्शन फॉर्मेशन, और बाकी जो है उनमें C3 तो होता है, लेकिन C3 के अलावा कुछ और प्रोसेसेस जैसे C4 पाथवे
और कैम, ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिन्हें आप पढ़ेंगे बाद में, CAM, कैम, ये पाथवे भी ऑपरेट होते हैं. सो C3 इज द पाथवे विच इज प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट्स. 85% प्लांट्स में वो अकेला है, पर अदरवाइज वो किसमें, सभी प्लांट्स में होता है. इस बात को भी याद रखिए. देयर आर अमंग द डिफरेंट पाथवेज, the two are main, one is C3 and one is C4. One is C3 and one is C4. What is the difference between the C3 and C4? इसको देखते हैं. There is a C3 pathway, C3 cycle भी से कहते हैं, and one is C4 pathway और C4 cycle भी कहते हैं. The basic difference is that फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस पाथवे, जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, वो 3 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. जबकि C4 के केस में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो एक 4 कार्बन है, कंपाउंड है, जिसका नाम OAA है, दैट इज oxaloacetic acid. The first difference. Second one is 3PGA is the 3-phosphoglyceric acid. Second one difference is CO2 acceptor molecule का है बेटा. CO2 acceptor in this case is, in C3 it is ribulose 1,5-bisphosphate. 5 कार्बन कंपाउंड है, ये एक्सेप्ट करता है. C4 में CO2 acceptor is, it is PEP, phosphoenol pyruvate beta, phosphoenol pyruvate. Is it clear? So these are the two pathways, and this is the difference between the two. Is it clear or not? Okay. Now see, today we are going to discuss particularly the C3 pathway. This is the C3 pathway, comprises of 15 steps. Step number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. 15 स्टेप होते हैं इसमें. बहुत इजी है बेटा. Within 10 to 15 minutes, you are familiar to this. You will do it very well. Okay? कैसे करना है वो देखें. We will start with the step number 1. Here is a list of the various steps with their enzymes. कैसे याद करना है मैं बता दूंगा. कैसे प्रोसेस को याद करना है वो देखिए आप. See, we have divided these 15 steps for our convenience. अपनी सहूलियत के लिए मैंने 3 major steps में डिवाइड किया है. One is carboxylation, second one is reduction or glycolytic reversal, third one is regeneration of CO2 acceptor molecule. First 2 steps are in carboxylation, 3 to 9 are in glycolytic reversal or reduction, and 10 to 15 are in regeneration of CO2 acceptor molecule. See here now. Step number 1. हमने पीछे लास्ट लेक्चर में किया था. We have discussed the various important biochemical processes there. किया था ना बेटा. Here see. Sorry. See here. This is the first step. Ribulose 5-phosphate got converted into ribulose 1,5-bisphosphate. मैंने पढ़ाया है आपको. I have discussed with you. यहां पे देखिए, यहां पे 5th पोजीशन पे फॉस्फेट है, यहां पे 1st और 5th पे है. दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? राइबुलोज 5 और 5-फॉस्फेट और 1,5-बिसफॉस्फेट में दोनों में डिफरेंस बेटा ये है कि यहां पे सिंगल फॉस्फेट और यहां पे देयर आर द 2 फॉस्फेट अटैच्ड टू द सिंगल राइबुलोज मॉलिक्यूल, वन एट कार्बन नंबर 1 and another at carbon number 5 dash, 1 dash and 5 dash. Okay, see here carbon number 1 and 5 you can see. So it must be there. मैंने कराया था आपको फॉस्फोराइलेशन में कि there must be an involvement of ATP. क्या होगा? ATP अपना फॉस्फेट किसको देगा? राइबुलोज 5-फॉस्फेट को देगा.
एटीपी एडीपी बन जाएगा और राइबोलोज को कन्वर्ट कर देगा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में। इट मीन दिस प्रोसेस, मैंने बोला था फॉस्फेट ऐड हो, एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। सो द प्रोसेस इज फॉस्फोराइलेशन एंड एंजाइम इन्वॉल्वड इज फॉस्फोराइबोलोज काइनेज। सबस्ट्रेट और जो प्रोडक्ट है दोनों ही राइबोलोज हैं। आपने नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम पढ़ा होगा, तो सबस्ट्रेट के नाम के सामने के साथ या प्रोडक्ट के नेम के साथ प्रोसेस का नेम लिखा जाता है और एस इज द सुफिक्स। याद रखें, एंजाइम के नेम के लिए ASE, एस इज द सुफिक्स। ओस फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड एस फॉर एंजाइम। ओके, नाउ सी हियर हाउ वी कैन राइट डाउन इट। क्या लिखेंगे हम इसको? अगर आपको लिखना हो पेपर में तब, अदरवाइज तो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना है बेटा तो आप हेडिंग देंगे और पहला स्टेप लिख देंगे फॉस्फोराइलेशन। इज इट क्लियर? यस। फिर क्या लिखेंगे? देखेंगे राइबोलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया किसमें? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में। किसके द्वारा? फॉस्फोराइलेशन के द्वारा। तो हम लिखेंगे राइबोलोज 5 फॉस्फेट गेट यस फॉस्फोराइलेटेड इनटू किसमें? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यूजिंग, क्या यूज किया बेटा? एटीपी। कौन से एंजाइम की हेल्प से? फॉस्फोराइलेज एंजाइम। विद द हेल्प ऑफ फॉस्फो, बोलिए, राइबोलोज काइनेस एंजाइम। जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, और जो एंजाइम है उसका नाम आपने जरूर लिखना है। एक्सप्लेनेशन फॉर प्रोसेस बन जाएगा। वो आपने सभी प्रोसेसेस में ऐसा ही लिखना है। मैं यहां सभी के लिए नहीं लिखूंगा, पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे लिखना है। नाउ सी सेकंड में देखिए आप। हाँ, दूसरा क्या देखना है? मैं आपको बता दूं कि देयर इज द 6 सच काइंड ऑफ साइकिल। एक साइकिल एक बार में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो क्या है? C6H12O6। तो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कार्बन कहां से आते हैं, कहां से मिलते हैं? एडिशन ऑफ कार्बन बाय द CO2। CO2 इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 विल प्रोवाइड द व्हाट? कार्बन। सो एक कार्बन एक बार में, दूसरी कार्बन दूसरी बार में, तीसरी कार्बन तीसरी बार में, फोर्थ कार्बन फोर्थ बार में, फिफ्थ बार में, और सिक्स्थ बार में क्या करेगा? एक एक कार्बन देगा। अल्टीमेटली ग्लूकोज विल बी फॉर्म्ड। हम एज अ होल 6 साइकिल विल बी ऑपरेटेड टू फॉर्म द 1 ग्लूकोज। हम यहीं पे 6 मॉलिक्यूल लिख देंगे, 6 मॉलिक्यूल हम कर देंगे, क्योंकि एक राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट एक CO2 लेगा, दूसरा दूसरी, तीसरा तीसरी, चौथा चौथी। ओके, ये प्रोसेस है। अब आप देखें, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट accept the CO2 molecule and became an unstable product. याद रखिएगा इसको, it is unstable. फर्स्ट प्रोडक्ट तो है पर फर्स्ट स्टेबल नहीं है। एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है 2-कार्बोक्सी 3-कीटो अरेबिनिटॉल फॉस्फेट बिसफॉस्फेट। 2-कार्बोक्सी 3-कीटो अरेबिनिटॉल बिसफॉस्फेट। और आप सिंपली लिख सकते हैं 6 कार्बन इंटरमीडिएट। 6 कार्बन बन गया, 6 कार्बन बन गया। ठीक है, देन ये जो 6 कार्बन बना, ठीक है बेटा, देयर मस्ट बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन एंजाइम हियर। यहां पे एंजाइम होगा। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट फॉस्फेट के साथ CO2 मिला, द प्रोसेस मस्ट बी कार्बोक्सिलेशन, और एंजाइम जो होगा वो कार्बोक्सिलेस होगा। तो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस, रुबिस्को, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबोलोज के लिए RU, बिसफॉस्फेट के लिए बिस, और CO कार्बोक्सिलेस, C फॉर कार्बोक्सिलेस। मैं आपको बता दूं, जब हम बार इफेक्ट पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे C4 में, तो मैं बताऊंगा कि जो रुबिस्को है ये डबल रोल करता है। एक कार्बोक्सिलेशन भी कर लेता है और समय पड़ने पे ऑक्सी
ऑक्सीजनेशन भी कर देता है, ऑक्सीडेशन भी कर देता है। सो इसीलिए O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन। सो रुबिस्को which is also called carboxy dismutase, here it is the enzyme। तो हम क्या लिखेंगे, ribulose 1,5-bisphosphate get combined with the CO2 in the presence of enzyme Rubisko to form 6 carbon intermediate compound which is 2-carboxy 3-keto-arabinitol 1,5-bisphosphate। ठीक है, clear? Now this is a 6 carbon। In the third step it splitting is there in the presence of water, this molecule will get broken because it is unstable and form the first stable product of C3 cycle, which is the 3-phosphoglyceric acid। my dear friends, 3-phosphoglyceric acid बन गया। ये 6 कार्बन के मॉलिक्यूल अब 3 बन गया। एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल कितने, अगर हमारे पास 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है तो 3 कार्बन का कितना बना देगा बेटा वो, आप ऐसे कीजिएगा, वेरी सिंपल इट इज, वी हैव 6 कार्बन इन सबस्टेट, 3 कार्बन के बनने हैं, तो डिवाइड द 6 कार्बन बाय 3 कार्बन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी देयर, 2 मॉलिक्यूल्स विल बी देयर। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 3 लगेंगे, हमारे पास हैं 6, तो कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स एक से। यहां पे अब मैं साथ साथ में मॉलिक्यूल्स भी अब आपको एडजस्ट करना सिखाऊंगा। यहां से पीछे अब यहां चलिए, क्योंकि 6 साइकिल को मैं इकट्ठा ही ऑपरेट करके ग्लूकोज बनवा दूंगा। सी 5 कार्बन मॉलिक्यूल इज राइबोज, हमें पता है पेंटोज है, इसके 6 मॉलिक्यूल, क्योंकि 6 साइकिल चलने के लिए 6 चाहिए। 5 कार्बन एक में है, 6 मॉलिक्यूल आर देयर, हाउ मेनी कार्बन वी हैव, 5 into 6 30 कार्बन, 30 आ रही है। इट विल फॉर्म हाउ मेनी कार्बन वी हैव, 30। देखिए बेटा ध्यान से, it will form the molecule with ribulose 1,5-bisphosphate which is also the 5 कार्बन। प्रोडक्ट में 5 कार्बन है, रिएक्टेंट में कितने थे, 30। आपने प्रोडक्ट के कार्बन से 5 कार्बन से इनको डिवाइड करना है, उतने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, हाउ मेनी, 6। 5 6 जा आर 5 6 आर हाउ मेनी, 30। तो 6 मॉलिक्यूल्स विल बी देयर। मैंने ग्रीन से मॉलिक्यूल्स लिखे हैं यहाँ पे, क्लियर है। अब तो सिंपल हो गया। तो अब देखिए बेटा, हाउ मेनी, अब इसको देखें अगली रिएक्शन में, यहां पे कितना है, देखें 5 into 6 30, और 6 कार्बन वाला बनना है। अब कितने हैं, 30 कार्बन है, 6 वाला बनना है, तो 5, हाँ 5 मॉलिक्यूल बनने चाहिए थे ना, यहाँ पे 6 वाले के बनने चाहिए थे 5, लेकिन यहाँ तो 6 लिखा है, क्यों, क्योंकि 6 कार्बन दे आर प्रोवाइडेड बाय द CO2। तो 30 in this plus 6, how many are there now, 36। इस चीज को सीखे आप, और 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनना है, तो इट विल फॉर्म द 6 मॉलिक्यूल। मैंने ग्रीन पेन से जो लिखे हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं। सो मैं अब सीधा ही बोलूंगा that the 6 molecule of the ribulose 5-phosphate get phosphorylated using 6 ATP to form 6 molecule of ribulose 1,5-bisphosphate in the presence of enzyme phosphoribulose kinase। Then the 6 molecule of ribulose 1,5-bisphosphate will get combined with the 6 molecule of carbon dioxide in the presence of enzyme Rubisko to form a 6 molecule of 6 molecule of unstable intermediate compound 2-carboxy 3-keto-arabinitol 1,5-bisphosphate, or you can say bisphosphate। Okay, then splitting will be there in the presence of water, unstable compound 6 carbon intermediate, it will get split into 2। we have 6 molecules here, जब ये टूटेगा तो 2 बनेंगे और वो 3 कार्बन के बनेंगे, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन, तो इट मस्ट बी विद 12 molecules। then 3-phosphoglyceride के 12 बनेंगे। नाउ आप देखें 3-phosphoglyceric acid is there, it will form 1,3-diphosphoglyceric acid। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक फॉस्फेट का डिफरेंस है, प्रोसेस मस्ट बी फॉस्फोराइलेशन एंड एंजाइम इज फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज और पीजीए काइनेज। ओके बेटा, एक मॉलिक्यूल के लिए 1 एटीपी चाहिए, तो यहां पे कितनी एटीपी चाहिए, 12 एटीपी, और यहां पे 6 मॉलिक्यूल थे तो 6। ओके, स्टेप नंबर 1 पे और स्टेप नंबर 4 पे एटीपी यूज हुआ, जो लाइट रिएक्शन में बना था।
और कितना ही हुआ 6 और 12 18 ATP। याद रखिएगा इस बात को, आगे बहुत जरूरत है इसकी। नाउ सी है इन द 1,3-diphosphoglyceric acid it will get this is the reduced, this will get oxidized। ये ऑक्सीडेशन हुआ है NADPH का, तो यहां पे क्या होगा, रिडक्शन विल बी द प्रोसेस। फिफ्थ प्रोसेस इज रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्राइओस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे याद कर ले ट्राइओस फॉस्फेट, क्योंकि दोनों ही जो प्रोडक्ट है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। सो आई कैन से 1,3-diphosphoglyceric acid reduced to glyceraldehyde 3 phosphate। ये भी 3 कार्बन के थे, 12 मॉलिक्यूल थे, इसका भी 3 कार्बन है, तो इसलिए 12 ही मॉलिक्यूल होंगे। इससे आगे जानना बड़ा जरूरी है, देखिएगा 12 मॉलिक्यूल के लिए मैं फार्मूला बता रहा हूं 2532 2532 का। याद रखिएगा 2532 का। 2532 में क्या है बेटा वो आप देखें। 2532 में क्या है, जो फेट है 12 मॉलिक्यूल का अलग अलग है। 2 मॉलिक्यूल का कुछ है, 5 का कुछ है, 3 का कुछ है, 2 का कुछ है, फेट भाग्य कुछ और है। आउट ऑफ द 12 मॉलिक्यूल्स, देखिए मैं बोलता भी रहूंगा, आउट ऑफ द 12 मॉलिक्यूल्स 5 मॉलिक्यूल विल गेट आइसोमराइज्ड टू फॉर्म डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन 3 फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन 3 फॉस्फेट। हाइड्रोक्सी 2 है, फॉस्फेट 1 है। ये भी 3 कार्बन का था, 5 मॉलिक्यूल आए, 5 3 15, तो 3 के कितने बनेंगे 5 मॉलिक्यूल जल्दी दे 5 ही बनेंगे। यहां पे फार्मूला लगा दीजिए 2,3 का फार्मूला लगाएंगे कि इन 5 में से जो 3 है, आउट ऑफ द 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन 3 फॉस्फेट 3 मॉलिक्यूल विल गेट कंबाइंड विद द 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसके 3 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल से मिलेंगे और बना देंगे फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। देखिए आप 3 कार्बन है, 3 कार्बन है 6 का बना, 1 फॉस्फेट इसमें है, 1 इसमें है, तो इसलिए बाइफॉस्फेट बन गया। अब देखिए कितने कार्बन आए, ये 3 कार्बन का था 3, 3 3s are 9, here 3 3s are 9, 18 total कार्बन आर here in the 7th प्रोसेस। अगर आप देखें 18 आर there, 6 कार्बन का बना, डिवाइड कर दीजिए 6 से, हाउ मेनी मॉलिक्यूल शुड बी देयर 3। इज इट क्लियर? सो हियर द प्रोसेस इज 7th इज एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन मैंने बोला था एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप OH ग्रुप जब जुड़ते हैं तो उसे एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। 8th सी फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, इट विल फॉर्म फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहां से एक फॉस्फेट निकल गया, प्रोसेस मस्ट बी डीफॉस्फोराइलेशन, एंजाइम शुड बी फॉस्फेटेज। In aldol condensation it is aldolase, while here it is phosphatase। ठीक है, इसके ऊपर आइसोमेरेज होगा, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज, दोनों ही ट्राइओजीज है। यहां पे एल्डोलेस है, यहां पे फॉस्फेटेस है। यहां पे फार्मूला रहेगा 2,1। आउट ऑफ these 3 molecule of the fructose 6 phosphate, 1 will get isomerized to form glucose 6 phosphate and then get dephosphorylated to form glucose। ठीक है, एक तो इसमें चला गया, ग्लूकोज बन गया बेटा। But the 2 molecule of the fructose 6 phosphate will combine with the 2 molecule of glyceraldehyde 3 phosphate। ये आया देखो, यहां मिल गए वो दोनों। The process is 10th process is called union or combination। union or combination clear है? It is called, the enzyme is involved is transcriptolase। clear है बेटा? Now see, then the 2 molecule of fructose 6 phosphate will combine with the 2 molecule of glyceraldehyde 3 phosphate to form 2 molecule of xylulose 5 phosphate and 2 molecules of erythrose 4 phosphate। Is it clear बेटा? देखिए there are 6 carbon, there are 12 carbon, 18 5 2 10 4 2 2 molecules will be there, 18 carbon satisfied। Then erythrose 4 in the 11th step, erythrose 4 phosphate, it will get combination है, it will get combined with the 2 molecules of dihydroxyacetone 3 phosphate। इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा और 4 कार्बन है, 3 कार्बन है, 7 कार्बन का कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है C2H close 1,7 bisphosphate। The process is combination, enzyme is transcriptolase। Is it clear? Then see, C2H close 1,7 bisphosphate और ये C2H close 7 phosphate, एक phosphate remove हो गया, it means process should be dephosphorylation and enzyme should be
phosphatase here. क्लियर है बेटा? अब 2 मॉलिक्यूल्स 7 7 है तो 2 ही बनेंगे, 7 ने 14, 7 ने 14, 7 2s are 14, 7 2s are 14. Then C2H12O 7 phosphate, 2 molecule of C2H12O 7 phosphate will get combined with the 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate, जो रह गया था देखो 2, इनके साथ मिलेंगे and form 2 molecule of cellulose and 2 molecule of ribose. Step number 13, combination. Transketolase should be the enzyme. जहां जहां combination हुए वहां पे transketolase enzyme है बेटा. Then see here. Okay? यहां पे transketolase नहीं है 11th में, यहां पे transaldolase है. Sorry, transaldolase. 10th और 13th पे transketolase और यहां पे transaldolase. So the 2 molecule of C2H12O 7 phosphate will get combined with the 2 molecule of glyceraldehyde 3 phosphate in the presence of enzyme transketolase to form 2 molecule of cellulose 5 phosphate and 2 molecule of ribose 5 phosphate. Then step number 14, ribose and ribulose are isomer pentages. 2 molecule of the ribose 5 phosphate they will get isomerized to form, isomerization करेंगे और ribulose 5 phosphate बना देंगे. और यहां पे देखें 2 मॉलिक्यूल 10 स्टेप में बने थे, 2 13 से बने 20 कार्बन, और यहां पे देखें 10 कार्बन है 30. तो ये जो 20 के 20 है xylulose 5 phosphate, it will also get isomerized. Isomerization is the process in the presence of enzyme phosphoribulose epimérase. यहाँ epimérase और यहाँ पे phosphoribulose isomerase to form ribulose 5 phosphate. 14th isomerization, 15th isomerization. These are the 15th step. These are the steps with the enzymes. Now, conclusion of the C3 cycle, my dear friends. The very important is that how much ATPs are used to form one glucose. एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना ATP यूज हुआ बेटा? स्टेप नंबर 1 और 4 पे 6 and 12 ATP, 18 ATP बेटा, ठीक है. और हाउ मेनी? 5th स्टेप पे 12 NADPH प्लस H पॉजिटिव. क्लियर है? इसका मतलब कितनी CO2 एब्जॉर्ब हुई? CO2 कितना लिया गया? 6 CO2. मतलब 6 CO2 को यूज करने के लिए, 6 CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके रिड्यूस करने के लिए कितना ATP यूज हुआ? 18 ATP और 12 NADPH. अब मैं आपसे ये पूछूंगा, नीट में पूछ लेते हैं कि हाउ मच CO2, सॉरी, एक CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए कितना चाहिए ATP और NADPH? वेरी सिंपल, एक को करने के लिए आप इसको 6 से डिवाइड कर देंगे. हाउ मेनी? 3 ATPs and 2 NADPH plus H positive beta. It is there. 3 ATPs. Okay. Clear है? So I am consolidating the topic now. This is the C3 cycle which occur in the stroma chloroplast as a biosynthetic phase given by the Melvin, Calvin and co-workers in the chlorella plant. It is present in all the plants. The CO2 acceptor molecule is here ribulose 1,5 bisphosphate. This is CO2 acceptor molecule beta. To form one glucose molecule, it means to incorporate 6 CO2 or to reduce 6 CO2 molecule, there is the requirement of 18 ATP and 12 NADPH plus H positive. To reduce the 1 CO2, it requires 3 ATP and 2 NADPH plus H positive, my dear friends. This is the scheme of the C3 cycle. These are the 3 major steps having the basically 15 steps with their enzymes. You have to remember this. So this is the all about C3 cycle. These processes are, first is phosphorylation, enzyme is phosphorybulase kinase, second one is carboxylation, Rubisco is the enzyme, third one is splitting, use water, phosphorylation is the fourth, phosphoglycerokinase or PGA kinase is there, fifth is reduction, triose phosphate dehydrogenase or glyceraldehyde 3 phosphodehydrogenase is the enzyme, sixth is isomerization, triose phosphate isomerase, seventh aldol condensation aldolase, eighth dephosphorylation phosphatase, ninth exose isomerase, ninth second glucophosphatase, union combination 10 and 13 transketolase, 11th transaldolase combination, 12th dephosphorylation phosphatase, 14th isomerization, 15th isomerization, but the enzyme in case of 14th is phosphorybulase kinase, while in the 15th phosphorybulase ribulose epimérase. So this is the C3 cycle.
meet you with the next topic in the next class. Till then, subscribe my YouTube channel, Biology at your fingertips with Vijay. I am with you with more interesting videos and the simplified concept of all the cycles ahead is there. So kindly subscribe and press the bell icon surely. Till then, bye to all. Thank you.